Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is the fourth video of continuity of a function. So this is chapter number 5 of class 12 mathematics. So far we have solved up to question number 14 of exercise 5.1. In this video we will solve starting from question number 15 onwards. So basically the concept of continuity is just to make sure that a function is continuous basically when the value of the function at that point is equal to the left hand limit and the right hand limit of the function at that particular point. All right, so keeping this in mind, let's move forward and let's solve this question number 15. So in question number 15, this is the function fx given to us, and you have to check whether this function is continuous or not. So as we discussed in the previous videos, how do we ascertain whether at which point we have to check the continuity of this function? So as you can see that the function is changing its behavior at x is equal to 0. As you can see here, for x less than 0, the function is 2x, and for x greater than or equal to 0, the function's value is equal to 0, right? So the function is changing its behavior at x equal to 0, so we need to check whether the function is continuous at x equal to 0 or not. Similarly, at x is equal to 1, the function is changing its behavior, because for x less than 1, the function is equal to 0, and for x greater than 1, the function is equal to 4x. So we need to also check whether the function is continuous at x equal to 1 or not. Alright, so we'll start by checking at x equal to 0 first. So you can write at x is equal to 0. So at x equal to 0, what is the value of this function? What is f0? So you will use this one, x is greater than or equal to 0, right? So the value of this function is equal to 0 when x is equal to 0. Now, what is the limit of this function? What is the limit of this function when x tends to 0? So when x tends to 0, we always calculate the left hand limit, and we then calculate the right hand limit of the function. So the left hand limit is x tends to 0 minus, and the right hand limit is x tends to 0 plus. All right, so this is, you can write LHL, and this one you can write RHL. Okay, so when x is less than 0, when x is tending to 0 minus, that means we're talking about the left hand limit. Okay, so when x is less than 0, as you can see here, fx is equal to 2x when x is less than 0. So we will use here fx is equal to 2x. Now we can just calculate this limit by direct substitution. So if you just substitute the value of x as 0, you write 2 into 0, which is equal to 0. And for calculating the right hand limit, what do we use as fx? For when x is greater than or equal to 0, fx equal to 0, so just use that. So as you can see here, the value of the function is equal to left hand limit, which is equal to right hand limit, which proves that the function is continuous at x equal to 0. So we'll write key as f0 is equal to LHL, which is equal to RHL. Therefore fx is continuous at x is equal to 0. All right, now let's move on to the second part of this question, which is at x equal to 1. At x is equal to 1. So what is the value of this function at x equal to 1? f1 is equal to, we'll use this one, x is less than or equal to 1. So we can see the value of function is equal to 0. All right, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? Now we will calculate the left hand limit, and after that we'll calculate the right hand limit. So left hand limit will be limit of the function when x tends to 1 minus, because we are checking at x equal to 1, so we should check for slightly less than 1. So for slightly less than 1, the same function is going to be applicable. So that will be limit of 0 when x is tending to 1 minus, whose value is going to be 0. For the right hand limit, when the value of x is slightly greater than 1, in this situation we'll use this one. That means fx will be equal to 4x. Now when fx is equal to 4x and we do the direct substitution, the value of the value of right hand limit will be 4 into 1, which is equal to 4. As you can see that the left hand limit and the right hand limit are not equal, so we can write as LHL is not equal to RHL. Therefore fx is discontinuous at which point? At x is equal to 1. fx is discontinuous at x equal to 1. All right, let's move to the second question, question number 16. So in question number 16, आप मुझे बताइए कि हम कौन कौन से पॉइंट्स पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. So we will check at x equal to -1, because -1 पर फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा है, and we will also check at x is equal to 1, because x equal to 1 पर भी फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है. All right, so let us first
check at x is equal to -1. At x equal to -1, what is the value of this function? It is equal to -2. यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब x का वैल्यू -1 के बराबर है या उससे छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू है -2. ऑलराइट, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम. लिमिट fx x टेंड्स टू -1. -1 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन -1. तो यहाँ पर रहेगा -1 एंड उसके ऊपर लिख देंगे एक छोटा सा माइनस साइन. इसका मीनिंग क्या होता है? वी आर चेकिंग द लिमिट ऑफ द फंक्शन, वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग -1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. -1 से थोड़ा सा छोटा. -1 से छोटे वाले के लिए फंक्शन का वैल्यू तो -2 ही है, तो यहाँ पर डाल देंगे -2 और याद रहेगा -2, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का हमारे पास स्कोप ही नहीं है. राइट, ऑलराइट. नाउ राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो विल राइट लिमिट fx x टेंड्स टू -1 प्लस, दैट मीन्स वी आर अप्रोचिंग -1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि इस बार हम ये बोल रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो -1 से इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1. द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1. So for this situation we'll use this one because this one x is greater than -1, तो ये देगा 2x. और जैसे ही यहाँ पे आप -1 करेंगे सब्स्टिट्यूट तो आता है -2. तो आप देख पा रहे हैं कि जो तीनों की तीनों वैल्यूज़ हैं वो बराबर आ रही हैं. एज f of -1 is equal to left hand limit is equal to right hand limit, therefore fx is continuous at x is equal to -1. ठीक है, इसके बाद आप चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे. तो देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? सो एज यू कैन सी हियर x इज लेस देन और इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 के लिए ये यूज़ करेंगे 2x. तो देखेंगे 2 × 1 तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 के बराबर. राइट, इसके बाद आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए विल राइट लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस. 1 से कम के लिए फिर से सेम आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x. x टेंड्स टू 1 माइनस, तो आ जाएगा 2. इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट विच विल बी लिमिट fx व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस. तो x अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे आपको फंक्शन कितना वैल्यू है? फंक्शन की वैल्यू है 2. सो विल राइट 2 देयर. तो इस बेसिस पर आप देख पा रहे हैं तो आ जाएगा 2. तो क्योंकि ये तीनों की तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो इससे क्या पता लगा हमें कि जो फंक्शन है दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. सो विल राइट एज f1 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 16 आल्सो. आई होप दिस इज क्लियर. Alright, let's go on to the next question, which is question number 17. So question number 17 क्या बोल रहा है? Find the relationship between a and b so that the function f defined by इतना is continuous at x equal to 3. हम चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए x is equal to 3 पे. देखिए 3 पर ही अपना बिहेवियर बदल रहा है, तो 3 पर हमको we have to make sure that the function is continuous, and making that sure that the function is continuous we have to find the relationship between a और b. Alright, तो आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर ही अडॉप्ट करना है. हम बोलेंगे f3 निकालेंगे. सबसे पहले हमें f3 निकालना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 3. ओके, सो एट x इज इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो हम यूज़ करेंगे पहला वाला क्योंकि वो है x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए वैलिड. तो कितना आ जाएगा? a इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3a प्लस 1. ऑलराइट, इसके बाद आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट. ये जाएगा लिमिट fx x टेंड्स टू 3 माइनस. तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस यानी कि 3 से थोड़ा सा कम, यानी कि पहला वाला एप्लीकेबल रहेगा. तो जाएगा लिमिट ऑफ ax प्लस 1 व्हेन x इज टेंडिंग टू 3 माइनस. तो दिस विल अगेन बी 3a प्लस 1. तो ये दोनों सेम आ गए. ऑलराइट, नाउ वी विल कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. तो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा लिमिट fx x टेंड्स टू 3 प्लस, meaning x is going to be slightly more than 3. slightly more than 3 के लिए आपका सेकेंड वाला यूज होगा. x is greater than 3 के लिए bx plus 3. fx is bx plus 3 when x is slightly more than 3. right, तो आ जाएगा b into 3 plus 1. इसे हम लिख सकते हैं 3b plus 3. सॉरी, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको
यहाँ पे इसको हम ले देंगे b इंटू थ्री प्लस थ्री, बी इंटू थ्री प्लस थ्री, तो आएगा 3b प्लस थ्री। ऑलराइट, नाउ हम चाहते हैं, वी वांट टू मेक श्योर दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। भाई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये जो तीनों के तीनों वैल्यूज़ हैं इक्वल होनी चाहिए। जो पहली दोनों वैल्यूज़ हैं वो तो सेम ही आ रही हैं, तो वो तो इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बस इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे कि 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो यहाँ से आपके पास जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। और यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। कितना आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। So this is actually the relation between a and b for the function to be continuous at x is equal to 3. Alright, let's move on to question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये सिंबल है लैम्डा जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं, वेवलेंथ का सिंबल वही है ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे हमें मेक श्योर करना है कि फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सो राइट एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे अगर आप चेक करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे इफ x लेस देन इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि वहीं पर आ रहा है इक्वल टू 0, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यह देगा लैम्डा ब्रैकेट में आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो आप देख पा रहे हैं लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, तो ये क्या 0, राइट। फंक्शन की वैल्यू 0 डालने पर 0 आ रही है। ऑलराइट, नाउ लेट अस कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि स्लाइटली लेस दैन 0। अगेन जो पहला वाला आपको गिवन है वही यूज होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या देगा, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और जैसे ही आप करेंगे इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, x को जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो यू विल अगेन गेट अ 0। ऑलराइट, इसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इस बार एफ एक्स लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि जो x है वो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 0 से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 4x प्लस 1 है ना हमारा जो एफ एक्स है 0 से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ देगा लिमिट 4x प्लस 1 व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर दैन 0। तो इसको आप कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो 4 इंटू 0 प्लस 1, ये आ गया 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 0 0 और 1 आ रही वैल्यू। क्या हमारा LHL और RHL बराबर है? ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे कि एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। एंड अगर हमारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स कैन नॉट बी कंटिन्यूस, एफ एक्स कैन नॉट बी कंटिन्यूस एट विच वैल्यू, एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्योंकि लैम्डा तो आ ही नहीं रहा है कहीं पर पिक्चर में, किसी के अंदर भी लैम्डा अपीयर हो रहा है क्या? कहीं पर भी लैम्डा अपीयर नहीं हो रहा है, राइट। देयरफॉर एफ एक्स कैन नॉट बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूस। तो आपको क्या लिख आना है, एफ एक्स कैन नॉट बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ऑलराइट, इसके बाद ये क्या पूछ रहा है, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको यहाँ पर, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। सो देखिए, let me just get rid of this portion and then we'll check the continuity of the function at x is equal to 1. All right, so at x is equal to 1, at x is equal to 1, x equal to 1 पर अगर आप देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको 4x प्लस 1 यूज़ करना है, क्योंकि x तो 1 तो आपका इस वाली कैटेगरी में फॉल करेगा ना। तो आ जाएगा 4x प्लस 1 यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, राइट। इसके बाद आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस देन 1। अब देखिए ये जो 4x प्लस 1 है, दिस इज वैलिड व्हेन x इज पॉजिटिव, तो अगर 1 से हल्का सा कम भी है x का वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली लेस देन 1, तो इवन इन दैट केस 4x प्लस 1 ही वैलिड रहेगा आपका, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1, x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे आप कर दीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू 5।
ठीक है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1+, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा के लिए फिर से 4x + 1 ही वैलिड रहेगा आपका फंक्शन का वैल्यू, तो आ जाएगा fx + 4x + 1। अब कर दीजिए आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो कितना आ जाएगा फिर से 4 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 5। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका फंक्शन का वैल्यू है, जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड राइट हैंड लिमिट, ये सब कुछ इक्वल है। इससे आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस, और ये जो ब्रैकेट में x लिखा होता है ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि आपको फंक्शन दे रखा है gx। देखिए फंक्शन को कभी fx बोलते हैं, कभी gx बोलते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय एनी सिंबल। ठीक है, जनरली इसको fx या gx या hx सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ देखा है gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जानकारी होना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो बिफोर वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क कैसे करता है। ऑलराइट, तो देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि आपके पास है, आपने क्या किया, आपने x को डाला 1, तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इज 1 ओनली। अगर आपने डाला x को 2, सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल गिव यू 2 ओनली। यानी कि अगर आप जो भी इंटीजर डालेंगे इसके अंदर, आपके पास एज इट इज आंसर आ जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो। मान लीजिए कि आपने डाला -2, तो भी आंसर आपके पास -2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है आपको कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर डालते हैं तो ये आपको वो इंटीजर एज इट इज रिटर्न कर देता है। ठीक है, बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने डाला इसके अंदर 0.5, क्या डाला आपने डाला 0.5, तो 0.5 डालने पर क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए एक नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पर ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, यहाँ पे आपका 0.5 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0.5 है। अब मेरे को बताइए कि 0.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर अवेलेबल है, जस्ट लेफ्ट में कौन सा है, 0 है या 1 है? 0.5 के लेफ्ट में अवेलेबल है 0। ओके, तो ये क्या करेगा, ये दे देगा आपको 0 यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आपने डाला माइनस का 0.5, वो यहाँ पर होगा कहीं पर, राइट, इट विल बी समवेयर ओवर देयर। बताइए -0.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर अवेलेबल है -1, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। आई होप द वर्किंग इज क्लियर नाउ। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए लिखा हुआ है 1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो 1.75 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर अवेलेबल है, इट इज़ 1। ओके, तो आंसर आ जाएगा 1। सो दिस इज हाउ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क्स। तो जो जिस भी नंबर का निकालना है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर वो इंटीजर है तो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि अगर वो इंटीजर है या होल नंबर है तो एज इट इज आ जाएगा आंसर हमारा। लेकिन अगर वो एक डेसिमल नंबर है तो आप उस डेसिमल नंबर के जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा नंबर लाइन पर नंबर, दैट विल बी योर आंसर। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पर ये बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ये आपको बोल रहा है कि प्रूफ करके बताओ कि जो फंक्शन है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल मतलब एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ऑलराइट, अब बता रखा है हियर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इन जनरल जब भी आपको ये दिखेगा तो जस्ट बिकम अवेयर दैट दिस इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसकी जो फंक्शनिंग है, जिसका जो तरीका है वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है कि किस तरीके से वर्क करता है। ऑलराइट, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट अस टेक एनी वैल्यू ऑफ x वेयर वी कैन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से। मान लीजिए आपने लिया at x equal to 4, we will use the same method, the same fundamental approach that we have been using so far. Alright, तो सबसे पहले तो निकालेंगे कि जो फंक्शन है gx उसकी वैल्यू कितनी आती है 4 डालने पर। तो अगर आप 4 डालेंगे तो डाल दीजिए यहाँ पर, तो आएगा 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 तो 4 ही होगा ना, क्योंकि इंटीजर अगर डालते हैं तो इंटीजर ही आंसर आता है। तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो आ गया 0। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
क्या निकालेंगे हम निकालेंगे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट जी एक्स एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, 4 माइनस मतलब 4 से थोड़ा सा छोटा, 4 से स्लाइटली छोटा, यानी कि 3.99 टाइप का। ठीक है, तो डाल देते हैं इसको लिमिट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x टेंड्स टू 4 माइनस। ठीक है, तो 4 माइनस को आप मान लीजिए 3.99। ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4, यहाँ पे तो आपने डाल दिया 4। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे आप 4 से थोड़ा सा छोटा, 4 से थोड़ा सा छोटा अगर नंबर होगा तो उसका क्या आ जाएगा, देखिए जैसे कि ये 4 है और 4 से, क्योंकि हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखिए कि वो जो नंबर, चलिए एक काम करते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए 4 से थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं 3.99। ठीक है, तो 3.99 डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे 3.99। अभी बताइए कि 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इट विल गिव यू 3, राइट। तो देखा 3.99 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0.99। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी आ गई, जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो 0 है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0.99 आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये अनइक्वल है तो यहाँ से हमको साफ साफ पता लग गया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सिमिलरली आप इसका राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस फॉर मी टू राइट हेयर द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या डालेंगे, x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 4। ओके, तो लेट मी डू इट हेयर। सो बेसिकली इस बार जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर दैन 4। तो लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंड्स टू 4 प्लस। ठीक है, तो ये रहेगा लिमिट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x टेंड्स टू 4 प्लस। 4 प्लस में ले लीजिए 4.01 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.01, जाएगा 4.01 माइनस 4.01 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, अगर आप इसको नंबर लाइन पे इमेजिन करेंगे तो 4.01 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर अवेलेबल है, इट इज 4, राइट। तो रहेगा ये कितना, रहेगा 0.01। तो आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट 0.01 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0.99। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू आ रही है 0। ये तीनों ही अनइक्वल है। वैसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि लिमिट ऑफ जी एक्स, लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंड्स टू 4, एक्स टेंड्स टू 4 तो हमने एग्जांपल के लिए x इक्वल टू 4 पे हमने लिमिट निकाली है अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 4 सारे के सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर gx is discontinuous at all integer values. gx is discontinuous at all x belonging to z. Z is the set of all integers. Alright, I really hope this explanation is clear to you. अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो एक्स इक्वल टू पाई पर हमें ये चेक कर रहे हैं कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखिए इसके अंदर साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वी शुड नो दैट साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये इसका शॉर्टकट आप पहले तो देख लीजिए कि यू शुड नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप देख लीजिए इसको कि दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गो लाइक दिस, और ये चलता रहता है आगे। ठीक है ना, इट गोज ऑन लाइक दिस कंटिन्यूसली ये चलता रहता है इस तरीके से, इट डज नॉट स्टॉप देयर लाइक दैट। ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान रखिए कि हमारा जो साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन क्या होता है, वो साइन एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही नहीं, ये नेगेटिव साइड में भी कंटिन्यू करता है, इट कंटिन्यूज इन द नेगेटिव साइड ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चलता रहता है आगे भी और पीछे भी, आगे और पीछे मतलब पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन। क्या इसको ड्रॉ करते वक्त हमको अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, हमको लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वी आर एबल टू मेक इट कंटिन्यूअसली एंड इट डज नॉट, द ग्राफ डज नॉट हैव एनी ब्रेक एनीवेयर। सो साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे
बाय द सेम फंडामेंटल आइडिया, बट ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि sin x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ यहाँ पे लेट अस यूज द फंडामेंटल अप्रोच ओनली। सबसे पहले तो एट x इज इक्वल टू पाई, लेट अस राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। तो अगर पाई पर आप निकालेंगे इस फंक्शन का वैल्यू कितना रहेगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। कितना रहेगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। नाउ व्हाट इज साइन पाई, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 डिग्री इज 0, साइन 180 डिग्री इज 0, ठीक है। तो रहेगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, सो द वैल्यू इज नथिंग बट पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके ग्रेट, जा गया पाई स्क्वायर प्लस 5। इसको मैं ग्राफ में बना के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से साइन पाई 0 आ रहा है, देखिए ध्यान से। सो दिस इज बेसिकली y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। ये होता है आपका 0, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली 180 डिग्री, और जिसको हम बोलते हैं पाई। दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 5 पाई, दिस इज 6 पाई एंड इट गोज ऑन लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इंटीजर पाई पे हमारा जो साइन फंक्शन है वो हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए कट किया, यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका y का वैल्यू कितना आ रहा है, y 0 है ना, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इन सारे की सारी जगहों पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, n पाई पे साइन x का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। इसी वजह से साइन पाई इज 0। तो ये निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स when x tends to pi minus, x tends to pi minus, यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए पाई माइनस के लिए अब इसको निकालने का एक तरीका होता है, देखिए देखते हैं ध्यान से। x tends to pi minus, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। अब देखिए या तो आप कर दीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा यहाँ पे, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके करने के, एक तो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड है जिसे बोलते हैं एच कॉन्सेप्ट। नंबर 1 इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इज बाय एच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप दोनों मेथड्स को ध्यान से समझ लीजिए, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम करते हैं बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है ना पाई, इसको आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट इज इट। तो बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो आप लिख लीजिए कि LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव पाई माइनस, ये जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये तो सेम ही आ गया जो ऊपर हमने किया था, राइट। तो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई इज 0, तो ये आ गया आपके पास पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं राइट हैंड लिमिट, सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। एक काम करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं बाय विच मेथड, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाय एच कॉन्सेप्ट। एच कॉन्सेप्ट मेथड भी कुछ सवालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेथड है, विल कम टू दैट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस। अब हमने ऑलमोस्ट कितने, दिस इज विच क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, हमने 20 सवाल कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। तो बाय नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद द वे वी आर राइटिंग थिंग्स, ठीक है। तो आप अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखिए मत, आप लिखिए, नोट्स बनाइए, तो आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स क्या रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू पाई प्लस। आप लगा दीजिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो फिर से सेम ही आ जाएगा, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स साइन पाई प्लस 5 एंड क्या जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एज आप देख सकते हैं कि एज एफ पाई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट, देयरफॉर एफ एक्स इज continuous at x is equal to pi, fx is
continuous at x is equal to pi. हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था is the function continuous at x equal to pi? So what is the final answer? The function is continuous at x equal to pi. लेकिन हमने ये लिमिट्स का इवैल्यूएशन किया कौन से मेथड से? जिस मेथड से हमने बाकी सारे सवाल सॉल्व किए हैं अभी तक, which is your direct substitution method. ऑलराइट, ये मेथड हमने कहाँ पे पढ़ा? क्लास 11th का मेथड है ये, लिमिट्स सॉल्व करने का सबसे फंडामेंटल मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. ऑलराइट, लेकिन एक और मेथड कौन सा है यहाँ पर? द सेकेंड मेथड इज एच कॉन्सेप्ट. तो हम एच कॉन्सेप्ट की मदद से समझते हैं कि लिमिट्स का इवैल्यूएशन हम कैसे कर रहे होते हैं. ऑलराइट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बाय यूजिंग एच कॉन्सेप्ट. सो लेट मी टेल यू कि किस तरीके से हम एच कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके निकालेंगे अपना लिमिट का वैल्यू. ऑलराइट, सो लेट अस राइट मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2, आपको लग रहा होगा कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हमें एच कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो वाई आर वी डिस्कसिंग इट. सी, जो हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एच कॉन्सेप्ट के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क नहीं करता है. कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको एच कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है. सो इट इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न हाउ डू वी यूज़ द एच कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, मेथड नंबर 2, दिस इज द एच कॉन्सेप्ट. स्मॉल एच एक वेरिएबल लेते हैं इसके अंदर, जो कि एक बहुत छोटा वेरिएबल है. एच की वैल्यू इज टेंडिंग टू जीरो. द वैल्यू ऑफ एच इज टेंडिंग टू जीरो. जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम बात कर रहे होते हैं एट एक्स टेंडिंग टू ए, यानी कि स्लाइटली लेस देन ए. तो ये जो स्लाइटली लेस देन ए है वो एच है बेसिकली. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम एक्स इक्वल टू ए पे निकाल रहे हैं तो हम लेते हैं एक्स टेंडिंग टू ए प्लस. तो ए प्लस मतलब क्या होता है? स्लाइटली मोर देन ए. स्लाइटली मोर देन ए. तो जो स्लाइटली वाला जो क्वांटिटी है वो एच है. एच इज दैट स्लाइट क्वांटिटी, द स्मॉल क्वांटिटी विच इज इटसेल्फ वेरी वेरी स्मॉल. इट माइट बी 0.00001. इसी वजह से हम लिखते हैं एच इज टेंडिंग टू जीरो. ऑलराइट, तो यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एच कॉन्सेप्ट लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ओनली एंड ओनली sin x function. Let us take the example of only sin x function and let us calculate. हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें तो x इक्वल टू पाई पे निकालना है हमको, लेकिन यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपको बताता हूँ. एट x इज इक्वल टू ए. एट x इज इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए यानी कि इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी पाई बाई 2, इट कुड बी पाई बाई 4, इट कुड बी पाई, इट कुड बी एनीथिंग. राइट, तो x इक्वल टू ए पे निकालते हैं. तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे होते हैं? फंक्शन का वैल्यू कितना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो एफ ए कितना आ जाएगा? यह देगा साइन ए. दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो बस आपने क्या किया? आपने बस x की यहाँ पर a सब्स्टिट्यूट कर दिया. दैट इज इट. ऑलराइट, ये हो गया. इसके बाद आप क्या निकालेंगे? इसके बाद आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन x इज टेंडिंग टू व्हाट? x इज टेंडिंग टू a माइनस. x इज टेंडिंग टू a माइनस. एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है आपका साइन x. यहाँ पे आप लिख दीजिए x टेंडिंग टू a माइनस. अब देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस वाली स्टेज पर आके वी यूज टू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दिस वैल्यू इन हेयर इन दिस फंक्शन. ऑलराइट, और हमारे पास आ जाएगा. अभी भी हम कर देंगे x इक्वल टू ए पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा साइन ए. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. लेकिन अभी हमको यूज़ करना है एच कॉन्सेप्ट. देखिए ध्यान से, एच कॉन्सेप्ट के मुताबिक इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है? आपको x को हटाना है और h को लेके आना है. रिप्लेस x with a minus h. Replace x with a minus h. a minus h मतलब, जैसे देखिए इसका मीनिंग क्या है? x is tending to a minus. That means जो x का वैल्यू है that is slightly less than a. The value of x is slightly less than a. तो a minus h का मीनिंग क्या हुआ? a minus h का मीनिंग क्या हुआ? देखिए हम x को रिप्लेस कर रहे हैं a minus h से. किससे? a minus h से, यानी कि slightly less than a से रिप्लेस कर रहे हैं. तो where, और यहाँ पे जो h है, h इज टेंडिंग टू जीरो. देखिए यहाँ लिखा है था मैंने, h इज टेंडिंग टू जीरो. ठीक है, ये क्लास 12th का कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज फ्रॉम क्लास 11th, जो चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है h कॉन्सेप्ट, उसकी मदद से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट साइन, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस किया हमने? a माइनस एच से. और यहाँ पर x टेंडिंग टू a माइनस नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे h इज टेंडिंग टू जीरो. h is tending to zero. Now what is this? This is sin of a minus h. Sin of a minus h की वैल्यू क्या होती है? मतलब ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है क्लास 11th का. So let us write the formula. I hope you remember this formula. Sin of a minus b. Sin of a minus b क्या होता है? Sin a cos b minus cos a sin b. Sin a cos b minus cos a
साइन बी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देते हैं, मैं थोड़ा सा इसको हटा के लिखता हूँ यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। सो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखा था हमने, लिमिट साइन ऑफ a माइनस एच व्हेन h इज टेंडिंग टू 0। इस वाले साइन a माइनस एच को आपको एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये जो स्मॉल a है ये कैपिटल A की तरह बिहेव कर रहा है और जो स्मॉल h है ये कैपिटल B की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे आप एक्सपैंड करेंगे तो यू राइट साइन a कॉस h माइनस कॉस स्मॉल a साइन स्मॉल h। ठीक है, ये आपने एक्सपैंड कर दिया। यहाँ पे आप लिख दीजिए लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। इसके बाद आपको करना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा आपको इस वाले मेथड के अंदर भी। h कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने, नाउ विल डू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ पर भी h आ रहा है ना वहाँ पर आपको h को 0 पुट कर देना है। ठीक है, लेट्स डू दैट। तो कितना आ जाएगा, LHL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन a कॉस 0 माइनस कॉस a साइन 0। साइन a कॉस 0 माइनस कॉस a साइन 0। नाउ व्हाट इज कॉस 0? व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 में स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आई होप यू आर नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक। कॉस 0 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो देगा साइन a इंटू 1 माइनस कॉस a इंटू साइन 0 इज 0, राइट, आ गया 0। ठीक है, तो जो सेकंड टर्म है वो तो पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होके, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, वी आर लेफ्ट विद ओनली साइन a। ठीक है, देखिए इस वाली स्टेज पे जो इमीडिएटली हमको रिजल्ट मिलता था बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में, बट यू विल अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ दिस h कॉन्सेप्ट मेथड इन द लेटर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऑलराइट, तो ये आ गया साइन a। सिमिलरली अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। आई विल कैलकुलेट दी राइट हैंड लिमिट। तो देखते हैं ध्यान से। So let us now calculate the right hand limit of which function? We're doing it for fx is equal to sin x. तो लिखेंगे right hand limit is equal to limit of fx when x tends to a plus। यहाँ पर fx क्या है आपका, fx है sin x, तो limit of sin x when x tends to a plus। अब इस वाली स्टेज पे आप क्या करेंगे, you will replace x with, देखिए यहाँ पर x आ रहा है ना, तो आपको x को हटाना है और x को किससे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करेंगे आप a प्लस h से। किससे, a प्लस h से, स्लाइटली मोर देन a वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो आपके पास जो राइट हैंड लिमिट बन के आएगा दैट विल बी लिमिट साइन a प्लस h इज टेंडिंग टू 0। और यहाँ पर इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। लेट अस राइट द फॉर्मूला। What is the formula of sin a plus b? Sin a plus b आपका कितना होता है sin a cos b plus cos a sin b। sin a cos b plus cos a sin b। यस, आपको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, या आपको फॉर्मूले क्लास 12th के इंटीग्रेशन के अंदर भी यूज मतलब हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इनसे देयर इज नो एस्केप एट ऑल। ऑलराइट, सो निकाल लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। This will be sin a cos h plus cos a small a sin small h। अब क्या करेंगे, अब आप कर देंगे h की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा sin small a cos 0 plus cos small a sin 0। What is cos 0? Cos 0 कितना होता है, cos 0 is 1। ओके, तो आ जाएगा sin a into 1 plus cos a into sin 0 is 0। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया देखिए sin a। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव कर लिया हमने, इससे हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि हमारा जो फंक्शन था, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइन x फंक्शन की। तो इससे हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि हमारा जो साइन x फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है सारे के सारे नंबर्स के लिए जो भी उसके डोमेन में है। डोमेन क्या होती है साइन x फंक्शन की, साइन x फंक्शन की डोमेन होती है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, लिखेंगे कि 10, तो हमने क्या देखा कि f ऑफ a is equal to the left hand limit is equal to the right hand limit, therefore fx is equal to sin x is a continuous function। fx is equal to sin x is a continuous function throughout its domain। fx is equal to sin x is a continuous function throughout its domain। domain क्या होती है sin x की, x belonging to the set of real numbers। alright, ग्रेट। तो इस तरीके से हमने h कॉन्सेप्ट समझा बाय यूजिंग fx इज इक्वल टू साइन एक्स। नाउ आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू यू कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो cos x फंक्शन है, तो उसके केस में हम लोग
किस तरीके से उसका कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे। जैसे कि हमने ग्राफिकली देखा था, लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ कौन से वाले फंक्शन का है? दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन। देखिए अगर आपको फंक्शंस की अच्छी नॉलेज होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एडवांटेज इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस बेटर, राइट। तो यहाँ पे साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस ग्राफ हमको दिख रहा था, तो हमको मैथमेटिकली जब हम करेंगे तो वी ऑलरेडी नो कि हाँ वो कंटिन्यूस ही आएगा, राइट। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉस एक्स फंक्शन की। तो आप लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्या आप जानते हैं कॉस एक्स का ग्राफ? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। सो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स फंक्शन। देखिए जैसे आपका साइन एक्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता था, ठीक है, और इस तरीके से आप बनाते थे उसको। आप ये ध्यान रखिए कि कॉस एक्स का ग्राफ स्टार्ट होगा आपका यहाँ से 1 से, ये है 1, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। एंड इसको ड्रॉ करते वक्त आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मेरे को पेन उठा के यहाँ पे वापस लाना पड़ रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको पेन उठाना पड़ रहा है। आप समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ग्राफ को जो हमने ड्रॉ किया, तो देखिए क्या इसके अंदर कहीं पे कोई गैप या कोई ब्रेकेज दिख रहा है आपको? कोई ब्रेकेज नहीं है इस ग्राफ के अंदर। तो यानी कि साफ साफ पता लग रहा है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये चलता रहता है। और इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन भी x बिलोंग्स टू r ही है। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो कि आप इस फंक्शन के अंदर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर्स नहीं कर सकते, आयोटा वाले नंबर्स इसके अंदर नहीं डाल सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके मन में आए आप डालिए इसके अंदर, चाहे वो इरैशनल हो, रैशनल हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, वॉट एवर यू फीड इन टू इट, इट विल ऑलवेज गिव यू एन आउटपुट। The output will always lie between 1 and -1। रेंज होती है ना साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन की, -1 to 1, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आपने जो ग्राफ बनाया था साइन एक्स का, वहाँ पर जाके भी आप 1 और -1 मार्क कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो जो साइन एक्स फंक्शन है उसकी डोमेन की बात हो गई और रेंज की बात भी हो गई, ठीक है। रेंज क्या है इन दोनों की? रेंज है इनकी -1 to 1। ऑलराइट, अब हमको देखना है कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि कैसा फंक्शन है। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और कौन सा मेथड लगाएंगे? इस बार हम लगाएंगे अपना एच कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं, तो आप लिख लीजिए कि टू प्रूव एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इन द प्रूफ सेक्शन लेट अस से कि हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? याद आएगी cos a के बराबर, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे? लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू a माइनस, यहाँ देगा लिमिट cos x x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है। अब हम करेंगे यूजिंग h कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे? हम रिप्लेस कर देंगे x को किससे? विद a माइनस एच, वेयर h इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज h इज टेंडिंग टू 0। ऑलराइट, तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ cos a माइनस एच व्हेन h इज टेंडिंग टू 0। नाउ व्हाट इज cos a माइनस b का फॉर्मूला? आप यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस बी। ट्रिग्नोमेट्री वाले जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनकी लिमिट्स निकालने के लिए आपको इनके फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है cos a cos b, cos a माइनस बी कितना होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पर तो माइनस साइन है लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको कर देते हैं एक्सपैंड। तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा, कितना बन जाएगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा cos a cos h प्लस साइन छोटा a साइन छोटा h। अब आप डाल दीजिए h को 0, तो आ जाएगा cos a cos 0 प्लस sin a sin 0। व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, तो कितना आ जाएगा? cos a इंटू 1 प्लस sin a इंटू sin 0 इज 0। तो यहाँ से कितना आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट? ये आ गया cos a के बराबर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे आप? अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेट अस कैलकुलेट दी राइट हैंड लिमिट। आप खुद से ट्राई कीजिए राइट हैंड लिमिट को निकालना, और देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। एक बार आप लिख के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स टेंड्स टू a प्लस, तो देगा लिमिट ऑफ cos x
व्हेन x टेंड्स टू a प्लस। इस बार आप बताइए कि किससे रिप्लेस करेंगे। इस बार आप रिप्लेस कर देंगे x को a प्लस h से, स्लाइटली ग्रेटर दैन a वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो जो राइट हैंड लिमिट बन जाएगा आपका, दैट विल बी लिमिट x इज टेंडिंग, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे आएगा h इज टेंडिंग टू 0, या देगा cos a प्लस h। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b? cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos के जो a और b वाले फॉर्मूले हैं, इनके अंदर यही बात आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारे फॉर्मूले के अंदर प्लस साइन है तो उसके एक्सपेंशन में माइनस साइन आता है। अगर हमारे फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन है तो उसके एक्सपेंशन के अंदर प्लस साइन आता है। ठीक है, ऑलराइट। तो कितना रहेगा? ये रहेगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट cos a cos h माइनस sin a sin h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। आप h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा? cos a इंटू cos 0 माइनस sin a इंटू sin 0। अब तो आपको cos 0 की वैल्यू याद हो ही गई होगी। कितनी होती है cos 0 की वैल्यू? इट इज 1। तो ये आ जाएगा cos a इंटू 1 इन माइनस sin a इंटू sin 0। कितना होगा? sin 0 is 0। तो कितना आ गया आपका फिर से cos a के बराबर। ठीक है, तो देखिए आपका जो फंक्शन का वैल्यू था वो भी cos a था, और x इक्वल टू a पर LHL भी cos a था, और आपने अभी निकाला कि जो आपका राइट हैंड लिमिट है वो भी cos a है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको पता लग रहा है कि जो आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos x, वो कैसा फंक्शन है? वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो लिखेंगे कि एज fa इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, therefore fx is equal to cos x is a continuous function। fx is equal to cos x is a continuous function throughout its domain। फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं? उसकी डोमेन में, क्योंकि डोमेन के बाहर तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रह पाएगा ना। तो अगर x की वैल्यू रियल नंबर से आप डालेंगे इसके अंदर, तो आप क्या पाएंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ऑलराइट, इसके बाद हमने कौन से क्वेश्चन तक सॉल्व किया था? जस्ट अ मोमेंट। सो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व, राइट? ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अ कपल ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ functions। properties related to continuity of functions। so देखिए, मान लेते हैं कि लिख लीजिए कि if fx and gx, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दोनों ही कंटिन्यूस हैं, पता है हमको। if fx and gx are two continuous functions, इन दोनों की अपनी अपनी डोमेन होगी, अपनी अपनी रेंज होगी, दैट इज देयर। लेकिन ये दोनों फंक्शंस क्या हैं? गारंटीड दे आर continuous functions। if fx and gx are two continuous functions, then तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देंगे ना, तो जो ऐड होने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ऐड होने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा? वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट फंक्शन, वो भी क्या होगा? वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एंड थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड ये बोल रहा है कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या आएगा? तो भी आपको एक कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही सिंपल हैं, राइट? और जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये बोलती है कि अगर आप इनको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो भी क्या मिलेगा आपको? तो भी आपको मिलेगा एक कंटिन्यूस फंक्शन। जब हम डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वी हैव टू बी कॉशियस कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो गया हो। ठीक है, तो वी हैव टू राइट कि gx इज नॉट इक्वल टू 0। वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो gx है ना, दिस gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये फोर्थ वाले के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी सब के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फ्रैक्शन अगर है तो उसमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज द फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। राइट, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस: sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, sin x
इंटू कॉस एक्स। अब देखिए जो हमने अभी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं का यूज़ करके हम सिंपल बोल सकते हैं। देखिए हम साइन एक्स ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे प्रूव किया हमने? बाय यूजिंग एच कॉन्सेप्ट सेपरेटली, राइट। हम कॉस एक्स भी प्रूव कर चुके हैं कि वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल देंगे ए पार्ट में कि साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूव्ड अबव, हम ये ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं, बट जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम के लिए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पूरा का पूरा एच कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सिमिलरली आप लिखेंगे कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूव्ड अबव। तो दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, लिखेंगे कि देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूस हैं तो उनका जो सम होगा दैट विल ऑल्सो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। एंड ये दोनों की दोनों जो बातें हैं, ये जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं हमारे बी पार्ट और सी पार्ट, इनके लिए भी आप प्रॉपर्टी लिख के बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, एंड सी पार्ट के लिए आप लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। यस, तो इस तरीके से आपने ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों के तीनों इकट्ठे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, दिस क्वेश्चन इज जस्ट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव लर्नड ऑन द प्रीवियस स्लाइड, राइट। तो इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाला वीडियो, लेकिन आई होप कि आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसको आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कॉमेंट डाउन इन द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग मोर सच वीडियोज़, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।